Hello and welcome to Hitbullseye. My name is Manish, and in this video we are going to discuss a very important topic, and I think to a lot extent a highly anticipated topic as well, because for the last many years we have been discussing that India is the second most populous country in the world, but finally we have left China behind in at least population. That is, we have become the most populous country in the world. So welcome to this video, and we are going to discuss this topic of the week for the second week of April. India becomes world's most populous country. बहुत सालों से हम ये एंटिसिपेट कर ही रहे थे कि इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. सो वन डे वी विल क्रॉस चाइना इन पॉपुलेशन, एंड इंडीड द टाइम हैज़ कम, and in this second week of April 2023 we have finally surpassed China to become the world's most populous country. So let us take a look at some of the facts, and then we will proceed to see some statistics related to that. So इंडिया की अब की डेट में पॉपुलेशन है 142.86 करोड़ पीपल. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम उस टाइम के सेंसस इसको कंपेयर करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन वाज 121 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. यानी कि पिछले 12 साल में हमने करीब 22 करोड़ पॉपुलेशन ऐड कर लिया. सो एवरी ईयर we are adding approximately 2 crores to our population, which is a huge number. But if we look at the base of India's population, then it may not look that huge. The base already is quite broad. So India's population right now is approximately 143 crores according to the latest United Nations data. China has a population of 142.57 crores. So the day we surpass China, हम 1 लाख population से surpass किए, and China is now the second most populous country. तो ये report publish की है UNFPA ने, which is United Nations Population Fund, known as UNFPA. United Nations Population Fund ने ये report publish की है. And according to this report, they have also detailed the category of India's population in different age groups. For example, 25% of India's population is in the age group of 0 to 14 years. That means young, या बिल्कुल ही जो young population है हमारी वो 25% है. Then 18% population जो है हमारी वो 10 से 19 साल के एज ग्रुप में है, which is the next या upcoming working age population. 26% population जो है वो 10 से 24 साल के एज ग्रुप में है, और 68%, ये वो फिगर है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, 68% इज इन 15 to 64 years of age group. यानी कि इसमें से मेजॉरिटी वो पॉपुलेशन है जो इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन है. ग्लोबली दिस इज अ accepted norm that 16 to 64 years of age group is the working age population. वो बात अलग है कि इंडिया में हम 18 साल के बाद एडल्ट पॉपुलेशन काउंट करते हैं, और रिटायरमेंट जनरली 58 या फिर 60 इयर्स ऑफ एज में हो जाती है. लेकिन ग्लोबली 16 इयर्स ऑफ एज इज कंसिडर्ड द क्राइटेरिया वेयर वर्किंग इज अलाउड. अपेरेंटली नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप 16 इयर्स से लोग काम करना शुरू कर देते हैं, एंड अ बिट लेटर इनटू द 60s दे कीप वर्किंग. तो 16 से लेके 64 तक का जो क्राइटेरिया है एज ग्रुप का, इसे वर्किंग एज पॉपुलेशन माना जाता है. 16 से कम children, they are also dependent, and 64 above senior citizens are also dependent. So dependent और independent population में ये जो proportion है, इसमें जब तक independent population proportionally ज़्यादा होती है तब तक वो एक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की तरफ वो कंट्री जा रही होती है. लेकिन जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होने लग जाती है, देन इट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न. उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें डेवलपमेंट एक ऑप्टिमम लेवल तक हो चुकी है, और अब वहाँ पे एज्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चाइना, जापान, इस तरह की कंट्रीज़. तो उनके पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड दैट इज़ प्रॉम्प्टिंग देम टू टेक सर्टेन डिसीजंस एज वेल. तो ये हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन का ब्रेकअप है. एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग केरला एंड पंजाब हैव एन एजिंग पॉपुलेशन, while Uttar Pradesh and Bihar have young population.
तो अगर हम एज ग्रुप वाइज देखें तो केरल और पंजाब में सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है और उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे यंग पॉपुलेशन है. India's population is expected to increase for nearly 3 decades before it peaks at 165 crores. So by 2050, India's population is expected to further increase. 2050 में हमारी population अपना peak hit करेगी, which is around 165 crores. और अगर हम वो पहले वाली कैलकुलेशन देखें कि हर साल 2 करोड़ लोग ऐड हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग तो अगले 30 साल में 60 करोड़ लोग ऐड हो जाने चाहिए थे, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन 200 करोड़ हो जाती. बट अगले 30 साल में हम सिर्फ 23 करोड़ और लोग ऐड करने वाले हैं. So in next 30 years, 23 crore more people are going to be added. That means India's population growth rate has already started to decline. Growth होगी, लेकिन growth rate जो है वो marginally decline कर रहा है. From 2001 till 2011, India's growth rate was 17.64% in total. 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन 17.64% से ग्रो की थी, लेकिन ये ग्रोथ रेट मार्जिनली कम होता जा रहा है. उसके अगली बार 15%, उससे अगली बार 12 या 13%, उससे अगली बार 8 या 9%. सो ग्रोथ इज देयर, but the rate of growth is marginally reducing, which is a huge sigh of relief for the Indian administration and the overall Indian authorities. Otherwise, it could have been a population disaster. लेकिन अब भी हमारे पास जो नंबर है, दिस इज ऑफ कोर्स ह्यूज एंड इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. उसके बाद हमारी पॉपुलेशन एब्सोल्यूट डिक्लाइन करना शुरू करेगी, और वो सिचुएशन चाइना ने हिट कर दी है ऑलरेडी. सो चाइना has 142.57 crore population, and from now onwards Chinese population is going to decline absolute numbers में. यानी कि अगले 1-2 साल में उनकी population 141 करोड़ रह जाएगी, फिर 140 करोड़ हो जाएगी, and like that. But India has just now started to experience that surge, and this is the stage, the next 25 to 30 years, that we call the stage of demographic dividend, because now India's population is going to be, a majority of population is going to be in the young age bracket that we call the independent age group. तो अगर इंडिया अगले 25 से 30 सालों में इस यंग पॉपुलेशन को एजुकेट कर पाए, उन्हें स्किल्स दे पाए और उनकी हेल्थ केयर का अच्छे से ध्यान रख पाए, then this young population can drive India towards a developed country tag, जो कि चाइना ने किया आज से 30 से 40 साल पहले. So it basically depends on what you do with that young population, because 30 to 40 years from now India will no longer have this advantage. तो इसीलिए जो लास्ट ईयर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्लोगन दिया था, अमृत काल. सो व्हाट इज दैट अमृत काल? अमृत काल इज 75th year of independence till 100th year of independence. In other words, from 2022 till 2047, when India will celebrate its 100th Independence Day, 1947 से 2047 वाला जो 100 years of independence हम मनाएंगे, उस टाइम तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बन चुके हों. और वो ऐसा क्यों कहा है गवर्नमेंट ने? बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिस्टिक that we are going to have a majority of people who are in the young age group. So we have to educate them, we have to train them, and we have to take care of their health, and they can make India an economic superpower. So that is about some of the statistics. अब अगर हम एक चार्ट पर नज़र मारें, which is by the BBC, British Broadcasting Corporation के according, so this is these are the 5 countries which are the fastest growing populations in the world. So according to this particular chart, India, China, Nigeria, Pakistan and Democratic Republic of Congo were the 5 countries which जिसकी population trajectory show की गई है यहाँ पे, starting from 2015 till 2100, यानी कि almost ये पूरी century 2015 से लेकर 2100 तक, इस सेंचुरी के एंड तक. फॉर द पर्पज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ 2 कंट्रीज कंसिडर करेंगे, इंडिया एंड चाइना, एंड ऑल्सो वी विल कवर ओनली 3 years, 2015, 2030 एंड 2050.
सो इंडिया को यहाँ पे ब्लू कलर से सिग्निफाई किया गया है, सो दिस इज इंडिया, और चाइना को रेड कलर से, विच इज दिस. सो दिस लाइन इज इंडिया एंड दिस लाइन इज चाइना. अब अगर हम ध्यान से इस ग्राफ को देखें जो उन्होंने बनाया है, सो अकॉर्डिंग टू बीबीसी in 2015 China had more population than India. So this is China and this is India. So according to BBC in 2015 China had more population than India, but exactly at this point, which is over here 2023. So at this point China's population and India's population is exactly the same, and after that India's population is going to increase, but China's population is going to be either stable or will start declining. It is in a decline already. It is in a decline already. India's population will keep increasing. So by 2050, so this is 2050. In 2050 India's population will hit its peak, जो कि 165 crores होगा, and only after that it will start to decline only marginally. That means अगर हम 2100 तक भी पहुंच जाएं, which is this, the end of this, look at the gap between India's and China's population. Now all this is presuming that the current trends of population continue. अगर इसमें कोई भी चेंज आता है, जैसे कि इसमें एक मेजर चेंज आने का चांस ये है कि चाइना ने 1970s में वन चाइल्ड नॉर्म अप्लाई किया था, which is a one child policy or one child norm. So according to that one child norm, so according to that one child norm, no one was allowed to have a second child in China, और उसी की वजह से चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन ही हुई है. अगर उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म नहीं अपनाया होता तो उनकी पॉपुलेशन आज हमसे बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा होती, लेकिन उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है और अब डिक्लाइन होना शुरू हुई है. Now they have changed this policy. So in the last 3 to 4 years they have changed this policy. They have not only allowed 2 children, they have allowed multiple children. So people in China are now going to have 2 or even more than 2 children. So it is not necessary कि चाइना की ट्रेजेक्ट्री यही रहने वाली है. इंडिया की ट्रेजेक्ट्री मोर और लेस यही रहने वाली है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इंडिया में इतने स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हम नहीं अपनाते. एक जनरल सा नारा आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, which has always been there, but nothing too stringent the way it is implemented in China. तो इंडिया की ट्रेजेक्ट्री तो यही रहने वाली है, that is for sure. और अगर ऐसा रहा then India will continue to be the most populous country in the world till the end of this century. यानी कि इस सेंचुरी के एंड तक एटलीस्ट हम दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री रहने वाले हैं. लेकिन चाइना की ये ट्रेजेक्ट्री रहेगी या नहीं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ द रिवर्सल ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म, कि क्या वहां पर लोग अब बहुत ज़्यादा टू चिल्ड्रन या फिर 3 चिल्ड्रन या मोर देन दैट उसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. राइट. सो दिस इज according to the current trajectory. So for India it is going to be this kind of a road. So whatever socio-religious or socio-economic reform processes that government of India and the various state governments are running, they have to be strengthened, they have to be more robust, because India's population is still on the rise, at least for the next 30 years. Only after that it will begin to decline. तो अभी तो हमारा यही रहने वाला है. This is what this chart shows. डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री का जो टैग होता है उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है विच इज़ पर कैपिटा इनकम. तो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक साइज के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया ऑलरेडी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है. यूएस इज नंबर 1, चाइना इज नंबर 2, जापान नंबर 3, जर्मनी नंबर 4 एंड इंडिया इज एट नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. और इंडिया की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 3.4-3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है. लेकिन असली क्राइटेरिया होता है पर कैपिटा इनकम, और इंडिया की पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप 3.5 ट्रिलियन को 1.42 बिलियन से
डिवाइड करेंगे तो नंबर बहुत ही कम आता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली $2100 और $2200. एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन 1000 to $4000 अगर पर कैपिटा इनकम है तो वो एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री होती है. सो द क्राइटेरिया इज दैट वी हैव टू इंक्रीज अवर पर कैपिटा इनकम, और वो कब बढ़ेगा? जब जीडीपी बढ़ेगी. तो आई थिंक इस करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हमारी जीडीपी कम से कम $10 ट्रिलियन हो जाए, 10 या उससे ज़्यादा $ट्रिलियन हो जाए, तब कहीं जाके हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरह क्वालिफाई कर पाएंगे. सो अप्रॉक्सीमेटली $10,000 प्लस पर कैपिटा इनकम अगर हमारी हो जाएगी, देन वी विल क्वालिफाई. तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर हमारी पॉपुलेशन लेट्स से 1.5 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, राइट, और अगर हमें $10,000 करना है तो हमें $15 ट्रिलियन की जीडीपी चाहिए, विच इज 5 times आवर करंट इकोनॉमिक साइज. तो $15 ट्रिलियन जीडीपी होने में हमें कम से कम 15 साल या 20 साल भी लग सकते हैं. सो दैट इज द, जैसे गवर्नमेंट ने अभी एक क्राइटेरिया दिया है, एक टारगेट रखा है कि 2026 तक हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, and maybe by 2035 we have to become a $10 ट्रिलियन economy, right? So every 7 to 8 years we will have to double the size of our economy. तो अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो by 2042 maybe we will have a $10,000 per capita income, and then we can say that we are a developed country. So per capita income is the criteria. और क्या क्या इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में कहा गया है अदर देन दिस? ग्लोबल पॉपुलेशन 8.045 बिलियन हिट कर गई है मिड 2023 तक. सो लास्ट ईयर इन नवंबर in the world population breached the 8 billion mark, and in Africa also the trend of rising population can be seen. It is estimated that the world's second largest continent will witness a spike in its population from 1.4 to 3.9 billion inhabitants by 2100. Now the reason why population is growing in Africa now, जबकि बाकी सब जगह वो कम होनी शुरू हो गई है, the reason is the demographic transition theory. So जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इनिशियल स्टेजेस में पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, बिकॉज बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, बेटर न्यूट्रिशन, तो डेथ रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. और जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिक लेवल राइज होता है वैसे वैसे बर्थ रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है इन द इनिशियल स्टेजेस. तो अफ्रीका अभी उन स्टेजेस में है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन अभी बढ़ेगी. इंडिया अभी मिड स्टेजेस में है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन मार्जिनली डिक्लाइन करनी शुरू हो गई है. लेकिन जो कंट्रीज फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है, जहां पे डेवलपमेंट ऑप्टिमम हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वहां पे पॉपुलेशन एब्सोल्यूट डिक्लाइन में है. जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑल दीज कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ऑल. तो the reason why Africa's population is going to increase is because they are in the initial stages of development. Right? Japan is also seeing a decline due to its aging population, losing more than 3 million inhabitants between the 11 and 2021. तो पिछले 10 साल में जापान में 30 लाख पॉपुलेशन कम हो चुकी है. So its population is on the absolute decline, and the aged population is increasing. So Japan is facing the problem that we may face 50 to 60 years down the line. That means Japan is a highly developed country. वो final stage of demographic transition में पहुंच चुके हैं. Here also this is a report by the World Population Prospects. तो World Economic Forum की एक रिपोर्ट है, World Population Prospects, जो कि उन्होंने 2015 में रिलीज की थी. I have taken this report here just to check how accurate the population projections are. So according to this report, this purple color represents Chinese population, and this sort of brown color represents the Indian population. तो कहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो चाइनीज पॉपुलेशन को ओवरसीड कर जाएगी? द ईयर वाज 2022. So according to the World Population Prospects report, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था आज से 8 साल पहले कि 2022 में
इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन को एक्सीड कर चुकी होगी, लेकिन हमने उससे 1 साल बाद ऐसा किया है. What does that show? It shows that India's population growth is not the same as it was in the previous decade, which is a good news for us, that our population is not growing at the pace at which it was expected to grow or it was projected to grow. It is lower than that. यानी कि आने वाले टाइम में भी इतना गैप नहीं रहने वाला है जितना इन्होंने प्रोजेक्ट किया है. Right? So that is what it is. Of course, estimates are not never 100% accurate. उसके बाद कुछ और फैक्ट्स देखते हैं जो इस रिपोर्ट में रिलीज किए गए हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर प्लैनेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन द 2090s. अगर हम पूरी दुनिया की कलेक्टिवली बात करें कि ओवरऑल ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, इंडिया की बढ़ेगी, अफ्रीका की बढ़ेगी, लेकिन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कब डिक्लाइन होनी शुरू होगी कलेक्टिवली? दैट विल हैपन ओनली इन द 90s. सो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वी कैन एक्सपेक्ट कि पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी. तो 10.4 बिलियन विल बी द पीक दैट वी विल हिट इन 2090. यानी कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अभी 2.4 बिलियन और बढ़नी है, विच इज अ ह्यूज नंबर. थर्ड नंबर पे हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा, ऑलवेज, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड कंट्री. उनकी पॉपुलेशन अभी सिर्फ 340 मिलियन है, विच इज 34 करोड़, और चाइना की 142 करोड़ है, हमारी 143 करोड़ है. देयर इज अ ह्यूज gap, right? So that is the data that we have. उसके बाद ये भी एक रिपोर्ट है जो कि UNFPA ने रिलीज की थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2018. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो देर आर सर्टन थिंग्स टू बी वॉच्ड, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज वाइज पॉपुलेशन जो यूएन ने प्रेडिक्ट की थी 2018 में, वो काफी हद तक एक्यूरेट है. जैसे अगर हम वर्ल्ड में देखें, सो इन द वर्ल्ड इफ वी जस्ट लुक एट दिस एज ग्रुप 15 to 64 एज ग्रुप की अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया में जो 15 to 64 एज ग्रुप है, इट इज 65%, right? In India it is 67%, in China it is 71%, यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है. लेकिन दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर. एंटायर पिक्चर अगर हमें देखनी है तो हमें यंग पॉपुलेशन देखनी है, 0 to 14. अगर हम 0 to 14 यानी कि यंग पॉपुलेशन को देखें, तो पूरी दुनिया में यंग पॉपुलेशन है 26%. इंडिया का एवरेज वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है 27%, और चाइना में कम है 18%, विच शोज दैट चाइनाज पॉपुलेशन इज एजिंग. चाइना में यंग पॉपुलेशन इंडिया से कम है, ग्लोबल एवरेज से भी कम है, लेकिन इंडिया में यंग पॉपुलेशन ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है, which shows that we have the highest absolute number of young people in the world. So this is what we call demographic dividend. Demographic dividend. However, as Mr. Shashi Tharoor has said in one of his books, this demographic dividend can turn into demographic disaster if the government does not take necessary steps, including the skilling of this population, the education and the health care of this population. ये तीन चीजें हैं जो अगर हम नहीं कर पाए इस यंग पॉपुलेशन को, अगर हम अच्छा हेल्थ केयर नहीं दे पाए, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए और अच्छे स्किल्स इनमें डेवलप नहीं कर पाए, तो फिर ये डिविडेंड नहीं रहेगा. देन ऑल दिस यंग पीपल विल बिकम अनएम्प्लॉयबल, unemployed, they will not be able to add anything to the country's GDP, and they will only increase the burden on the government. But if they are well educated, they are healthy and they are skilled, then they will contribute to India's GDP. So that is what this report points out. That is all for this topic. Although we have become the world's most populous country, but we can only hope that it works in India's favor rather than against us. That is all. My name is Manish Mittal, signing off. Thank you and take care.